हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। इंडो यूएसए रिलेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द ऑल क्लास स्टूडेंट। The diplomatic contact between India and the USA were initiated in the November 1941. 6 years before our independence, there was a wealth of the goodwill for Indian as independent in the USA. The decision of the establishment of diplomatic relation with the India reflected the America unhappiness with the British approach to be a question of independence. The United States believed that the Britain should be promised the self-government to the Indian after the war. In exchange for Indian as a participation in the struggle against Hitler, the alternatives of charter is split out by their USA and Britain had offered a hope or new dab to be a surprise to the people of the world once the war has been successfully concluded. America got a lot of the credit in Indian eyes for this. However, Britain's argumentally is declare that the charter is applied solely for follow Europeans under to Hitler's as a Nazi occupation. The next part here a relation with the Cold War on the year. The relation between the India and the USA the failed to achieve their fully potential, and many factors were responsible in the determining the actual scores. This was due to the preoccupations of the United States with their contaminated of the colonialisms which start to the Cold War. There is a most important Cold War. There is between to the USA and Soviet Union. There is between the US and Soviet Union here. The newly independent India, led by our first Prime Minister Jawaharlal Nehru, refused to be drawn into the Cold War politics of competitive military alliance and promoted by both the superpower. Nehru chose the policy of non-agreement, which the aimed to be give India to the much needed independence of action in their sphere of foreign policy and relation. America is regarded to India as a refusal of the collaborate as the sign of the unfairness. The causes of better Indo-USA relation received a blow in 1954. The USA through the Cold War brought is a rivalry is India as a doorstep by forming two military organizations, SEATO and CENTO. The SEATO and CENTO with the Pakistan, who joined this alliance as a key member. The USA military is added to Pakistan, give to check the spread of the coalition was used against the India, contrary to the initially assurance. The October 1962 war between India and China introduced a new element in the Indo-US relation. Within the India, there were for the first time many voices strongly advocating on the alliance with the USA against China. Many also wanted to the drastic or modification the non-agreement policy. There was a various expectation in the USA too that India could now be prepared to the head on anti-Chinese and anti-communist alliance. Being that China is involved, scale up. The government of India made an urgent appeal to the Washington, USA for the military supplies. In a speedily response, the USA President John F. Kennedy is provided to the India with a small army and equipment. The first batch of the army arrived even before the signing of the deal between the two countries. Further, the USA agreed to payment for this army in the rupees. However, the pro-American goodwill in India evaporated with the USA regulators. The opening blame of Pakistan for starting the 1965 war against the India. In addition to USA support to Pakistan, USA war on the Vietnam contributed to contain a coldness in the Indo-USA relation in 1960 century. In the beginning of 1970 century, the USA approachment with the China and with the Pakistan help was on another turning point. The Bangladesh is episode create a new crisis in the Indo-USA relation too. The USA administration government took the position that is the east of Pakistan as a present day Bangladesh. His revolt was a moment of break of Pakistan, and that
Pakistan revolters attempt to suppress its were justified. During the Bangladesh War 1971, the USA moved anti-Indian revolution in the security of counseling, and the USA froze in the economical assessment to the India. The only assistance that is continue was a food distributed free for voluntary agency. And not only that, Washington also made a military moves. A part of the USA 7th Fleet was ordered into the Bay of Bengal. The nuclear-powered aircraft crash and the USSR Enterprise is said to be a war there by Bengal in the show of solidarity and with the Pakistan army, which could be a save from a defeat to the Bangladesh. It took some time is a couple of years for the USA to recognize India as a major countries of the South Asia regions. And it was in the spirit of the reconciliations India is a hosted President chartered as a visit to 1977. However, one against another blow of stock, their Soviet invasions of the Pakistan in 1979 had to the India and United States on opposite side. Pakistan became their closest ally to be facilitated is the military help to the Afghan Mujahideen. No doubt to India is initially sympathetic with there is a Soviet action against the Afghanistan, harming to relation with the अमेरिका के शीत युद्ध के दौरान भारत और जो अमेरिका के बीच बहुत ही संबंध खराब होते चले गए। कहते हैं शीत युद्ध के दौरान भारत और जो है अमेरिका के बीच संबंधों का जो शिखर चल रही थी वो असफल होती चली जा रही थी। इसका वास्तव में कारण यही था कि जो है इसके वास्तविक दिशा में देने में कोई कारक उत्तरदायी थे। अमेरिका द्वारा साम्यवाद को दबाने की सोच का यह परिणाम था। यानी सबसे बड़ा जो इस समय के दौरान जो संबंध टूटे उसका कारण यही था कि अमेरिका ने साम्यवाद को दबाना चाहता था। और शायद आपको याद भी हो कि इस समय जो था अमेरिका और सोवियत यूनियन में जो था मानसिक युद्ध चल रहा था, जिसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। कहते हैं दोनों देश अपने आप को वर्चस्व को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयत्नशील थे और वो चाहते थे कि हर देश जो है उनके सपोर्ट में आए, लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहते हैं नव स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दोनों महाशक्ति द्वारा उकसाने पर भी शीत युद्ध में उनका साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारत को यह बात पता था कि अभी अभी वो आज़ादी हुए थे और फिर किसी एक खामे में चले जाना अपनी आज़ादी को जो है संकट में डालने के बराबर था। इसे जो है बहुत सूझबूझ से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे इनकार कर दिया। नेहरू ने गुटनिरपेक्ष रहने की नीति अपनाई और जिससे भारत को उसकी विदेशी नीति और संबंधों के बारे में स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अमेरिका ने भारत को इस इनकार को जो है अमैत्रीपूर्ण समझा। यानी अमेरिका को लगा कि शायद ये हमसे जो है दुश्मनी करना चाहते हैं भारत, लेकिन ये उनके लिए जो है गलत सोच थी। भारत ना तो किसी से दुश्मनी करता है, ना किसी से जो है इस तरह के जो है पंगा लेता है, क्योंकि भारत सदैव ही मैत्रीपूर्ण संबंध रखना पसंद करता है। लेकिन अमेरिका के सोच ने अमैत्रीपूर्ण समझा गया। भारत अमेरिका संबंधों को जो है 1954 में गहरा आघात लगा, यानी सबसे अधिक गहरा आघात जो लगा 1954 में। अमेरिका ने शीत युद्ध के भारत के दरवाजे पर ला खड़ा कर दिया और उसे सीटो और सेंटो नाम के दो सैन्य समूह बनाए, जिनमें पाकिस्तान एक प्रमुख सदस्य के रूप में बन गया। अमेरिकी सेना पाकिस्तान को साम्यवाद के प्रसार को नियंत्रण करने के लिए सहायता प्रदान करती थी और पाकिस्तान इसका प्रयोग भारत के विरुद्ध करता था, जो कि प्रारंभिक अविश्वासों के विपरीत था। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात आती है कि जब अमेरिका ने जो है सीटो और नाटो की जो व्यवस्था हुआ, सीटो और सेंटो की जो व्यवस्था की गई, पाकिस्तान ने एक खेमे में कूद के ये साबित कर दिया कि वो भारत से जो है हर समय युद्ध में लड़ने के लिए इन शक्तियों का जो है उपयोग करेगा। और पाकिस्तान ने किया भी। कई बार कारगिल का युद्ध हो या कोई भी युद्ध हो, बहुत से युद्ध लड़े गए जिसमें पाकिस्तान का जो है सहायता अमेरिका ने किया, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि भारत उसका मित्र नहीं है, क्योंकि वो किसी भी खेमे में नहीं जाने के तैयार था। इसके कारण कहते हैं अक्टूबर 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में एक नया तत्व जोड़ दिया। पहली बार
भारत में कई आवाजें उठाई कि चीन के विरुद्ध भारत को अमेरिका के साथ सैन्य संधि कर लेनी चाहिए। बहुत से लोग यह भी चाहते थे कि गुरुत्वनिरपेक्ष की नीति में गंभीर फेरबदल किया जाए। संभवतः अमेरिका को भी यह आशा थी कि भारत अब चीन विरोधी और साम्यवादी विरोधी गठजोड़ के लिए तरपत्ते हो जाएगा। जब चीनी आक्रमण तीव्र हो गया तब भारत ने वाशिंगटन अमेरिका से तुरंत सैन्य सहायता की मांग की। उसके प्रतिरोध में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने भी तुरंत ही छोटे हथियार और अन्य सामान भेजकर भारत की सहायता भी की। दोनों देशों के बीच इस सौदे पर हस्तक्षेप होने से पहले की हथियारों की पहली खेप भारत पहुंच गई। उसके बाद अमेरिका ने रुपये में भुगतान स्वीकार करने पर भी सहमति दिखाई। तो ये पहला बात था जब भारत और अमेरिका के बीच संबंध का गठजोड़ शुरू हुआ। हालांकि अमेरिका का यह मैत्री भाव भारत में तब समाप्त हो गया जब 1965 में भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का जिम्मेदार ठहराने के लिए पाकिस्तान पर सीधे सीधे आरोप लगाने में अपनी अनिच्छा दिखाई। यानी पाकिस्तान के युद्ध में जो था भारत का संबंध अमेरिका के साथ बिगड़ सा गया। इसके साथ ही पाकिस्तान को अमेरिका का सहयोग और वियतनाम पर अमेरिकी युद्ध से भारत अमेरिका संबंध में स्थिरता आ गई। 1970 के शुरू में अमेरिका का चीन से घुलना मिलना और भारत अमेरिका संबंध में बदलाव का मुख्य कारण बना। बांग्लादेश की घटना भी भारत अमेरिका के संबंध में एक नई संकट थी। अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश का विद्रोह पाकिस्तान को तोड़ने वाला आंदोलन था और इसे दबाने के लिए निस्संतापूर्वक व्यवहार उचित था। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में भारत विरोधी प्रस्ताव भी रखा गया और अमेरिका ने भारत को सभी प्रकार की आर्थिक सहायता देना बंद भी कर दिया। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा मुफ्त भोजन वितरण करने की एकमात्र सहायता निरंतर चलती रही। वाशिंगटन ने अमेरिका के 7वें बेड़े को एक भाग को भी बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। परमाणु शक्ति वाला यूएनए एंटरप्राइजेस बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान को हार से बचाने के लिए पहुंच गया। अमेरिका को यह बात समझने में कुछ वर्ष लगा कि दक्षिण एशिया क्षेत्रों में भारत एक महत्वपूर्ण देश है और यह रिश्तों को सामान्य बनाने की ही भावना थी कि भारत ने 1970 में राष्ट्रपति कटन की यात्रा को मेजबानी भी किया गया था। परंतु एक बार फिर झटका लगा जब 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ ने आक्रमण ने भारत और अमेरिका को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। अफगान मुजाहिदीन के सैन्य सहायता प्रदान करने में पाकिस्तान प्रमुख था और कोई संदेह नहीं है कि अफगानिस्तान के विरुद्ध सोवियत संघ के कार्य को भारत की सहानुभूति ने अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को क्षति पहुंचाई।